Animal Diversity 1, Lecture 6. Today we will discuss about the animal-like protists. That includes Trichomonas, Trypanosoma, Giardia, Leishmania. Protozoan taxonomy. Some scientists consider that protozoa is polyphyletic lineage, but if you consider the complete fossil evidence, then you will be deadly sure that there is a monophyletic lineage. Anyhow, protists are divided into 7 phyla and 7 kingdoms and 45 phyla. That includes the Sarcomastigophora, then Labyrinthomorpha, Epicomplexa, Microspora, Acetospora, Myxozoa, Celiophora, and they are classified on the basis of type of nucleus, either 1 or 2, their mode of nutrition, either they are autotrophic, heterotrophic, saprozoic, their mode of reproduction, either they have sexual reproduction or conjugation or asexual reproduction, then their mechanism of locomotion, either they have the flagella, cilia or amoeba, so pseudopodia, and their species exceeds 38,000 numbers, and the zoologists who study the protista are called the protozoologist. Here is a flowchart diagram where protozoan exist, protozoa, then Ctenophora, Cnidaria, animal phyla all exist. Then subphylums, phylum Sarcomastigophora. Phylum Sarcomastigophora have the 18,000 species, and that is the largest phylum having the particular characteristics. They may be unicellular या sometime colonial. They move by flagella, pseudopodia और both. या तो इनके अंदर flagella होंगे या इनके अंदर pseudopodia होंगे. flagella जैसे यूग्लिना, pseudopodia जैसे अमीबा, या दोनों होंगे. देन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, अपनी फूड खुद बनाते हैं प्लांट्स की तरह. हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, अपनी फूड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, या सेप्रोजोइक डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, एसेक्सुअल नहीं होगी ज़्यादातर. देन सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा. सब फाइलम मेस्टिगोफोरा that is the that have the flagellar locomotion. Member use flagella, and flagella may produce two dimensional motion. एक तो उसको spin करेंगे और दूसरा उसको forward लेके जाएंगे. Helical movements and whip like movements. Helical push और pull करेगा और दूसरा उसको आपस में घुमाएगा, spiral करेगा. Here is a subphylum Phytomastigophora. आप यूग्लिना देखो, फिर उसके बाद आप इसकी कॉलोनी देखो, वॉल्वक्स और साथ में ट्राइपेनोसोमा. क्लास मेस्टिगोफोरा. Subphylum Mastigophora divided into two classes, Phytomastigophora and Zoomastigophora. Phytomastigophora have the chlorophyll, two flagella, sometimes one, and they are the main food source in the marine food web. आप अगर फूड मेरीन इन्वायरमेंट को देखो तो डाइनोफ्लैजिलेट्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे जो मेरीन फूड में इस्तेमाल होते हैं. उसके अलावा यूग्लिना है, वॉल्वक्स है, ये सारे ही मेरीन फूड में इस्तेमाल होते हैं. और साथ में ये जितनी भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है मेरीन में, मैक्सिमम ये इस क्लास से आती है, ऑक्सीजन सोर्स है. हियर इज अ डायग्राम. फाइटोमेस्टिगोफोरन है आपके पास. आप देखो कितनी ज़्यादा इसके अंदर वैरायटी है. क्लेमाइडोमोनास है, आपने पढ़ा हुआ है. Then dinoflagellates. Marine dinoflagellates have the one flagellum that wraps around और उसको स्पिरल करेगा. दूसरा जो है वो उसको उसकी फर्स्ट जो है वो उसकी ट्रांसफर ग्रुप में मूव करेगा और दूसरा जो है वो उसका स्पिन करेगा अपने एक्सेस में. सेकेंड फ्लैजेलम पुशेस द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. एक उसको स्पिन करेगा और दूसरा उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करवाएगा. देन दे पोजेस द क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स. क्लोरोफिल उसको ग्रीन कलर देता है, ज़ैंथोफिल उसको गोल्डन ब्राउन कलर देगा. देन एग्जाम्पल इज जिम्नोडियम दैट प्रोड्यूस द पीरियोडिक ब्लूम्स, रेड टाइड्स,
एनिमल्स को अगर आप देखो तो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स रेड टाइड्स बनाते हैं या एल्गल ब्लूम्स बनाते हैं। बाद का ऐसे होता है कि इन एल्गल ब्लूम्स की वजह से जब इनकी डेथ होती है तो ऑक्सीजन नीचे नहीं पहुंच पाती, और जब पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिशेस किल हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा किलिंग एजेंट है, इसलिए रेड सी, इन्हीं की वजह से रेड सी का नाम दिया गया है। Here is the Red Sea. Here is a diagram that have the dinoflagellates, the ventral view and the dorsal view. यहाँ पे आप देखो तो आपको फ्लैजेलम नज़र आ रहा है। पिक्चर 1 में आप देखो यहाँ पे फ्लैजेला है, और इसी पिक्चर में आप देखो तो दूसरी साइड पे ऊपर भी फ्लैजेलम है और नीचे भी फ्लैजेलम है। Then Euglena. Euglena is freshwater phytomestigophoran having the chloroplast, but if you place the Euglena into the dark environment, then that will not produce the food but will become the heterotrophic. Some Euglena are naturally heterotrophic, they lack the chloroplast. They orient toward the light and their chloroplast have the very minute structure, that is stigma, and stigma just orient the Euglena over a photoreceptor at the base of flagellum. बेसिकली स्टिग्मा होता है जो फोटोरिसेप्टर्स होते हैं यूग्लिना के फ्लैजेलम की बेस पर, ये स्टिग्मा उसको कवर करके रखता है और उसको ओरिएंट करवाता, फोटोरिसेप्टर उसको ओरिएंट करवाते हैं लाइट की तरफ। Then stigma permits light to strike the photoreceptor from only one direction. एक डायरेक्शन से आएगी तो उसके अवे जाएगा या उसके अपोजिट उसकी तरफ जाएगा या उससे वे मूव करेगा। Euglena flagellates are haploids and reproduced by longitudinal binary divisions. Sexual reproduction is species unknown. यहाँ पे आप देखो तो फोटोरिसेप्टर और फोटोरिसेप्टर के ऊपर स्टिग्मा यहाँ पे वन लाइट डायरेक्शन जाने देगा और फिर उससे अवे जाएगा या उसकी तरफ जाएगा, वैसे टुवर्ड जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। देन वॉल्वक्स लिव इन द कॉलोनी। वैसे तो ये यूनिसेलुलर हैं लेकिन कॉलोनी बना के रहते हैं, हर सेल अपनी फंक्शन खुद परफॉर्म करता है, लेकिन इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। दे लिव इन द स्पेरिकल जिनेटमस मैट्रिक्स एंड पोजेस 2 फ्लैजेलम। कॉलोनी को रोल कर सकते हैं और उसको मूव करवा सकते हैं कॉलोनी के पानी के अंदर। अब ये क्या करते हैं कि ये दो तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये अपनी कॉलोनी के अंदर ही कुछ सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे जाके माइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं। जब मौसम चेंज होता है उस वक्त जो पेरेंट कॉलोनी है वो डाई हो जाती है और जो नई कॉलोनी बनी हुई होती है वो ग्रो करती है और नई कॉलोनी बन जाती है वहाँ पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के होते हैं, डायोसियस और मोनेशियस। Dioecious are those organisms who have the separate sexes, male, female separate. Monoecious have the single sex, male और female दोनों same organism. Here is a Volvox colony. आप ये देखो जिलेटिनस मटेरियल है और सेल्स ऐसे करके पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे नई कॉलोनी बन रही है, पुरानी भी मौजूद है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही इसके अंदर हो रही है। रिप्रोडक्शन में मैक्रोगैमेट्स और माइक्रोगैमेट्स। मैक्रोगैमेट्स आर लार्जर, स्टोर द न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन मोटाइल। माइक्रोगैमेट्स छोटे होते हैं और ये भाग के पानी के अंदर उतरते हैं और मैक्रोगैमेट्स की तरफ फौरन भाग के चले जाते हैं। फिर उसके बाद इनकी फ्यूजन होगी और नई कॉलोनी बनेगी। द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस डीजनरेट, मतलब जो अदर प्रोडक्ट्स होती हैं वो मैक्रो और माइक्रोगैमेट्स तो बनते हैं लेकिन उसके अलावा जो मियोसिस के प्रोडक्ट्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी। दिस कॉलोनी इज रिलीज फ्रॉम द प्रोटेक्टिव जाइगोटिक कैप्सूल इन द स्प्रिंग। Here is asexual and sexual. अब यहाँ पे देखो मेच्योर डॉटर कॉलोनी, यहाँ पे पूरी एक कॉलोनी है, उसमें अब कुछ सेल जो हैं वो इस तरह करके यंग डॉटर कॉलोनीज बनाएंगे और फिर ये मेच्योर हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो ये गैमीट्स बन रहे हैं, स्पर्म्स हैं और स्पर्म पैकेट्स हैं। ये आपके पास एक मैक्रोगैमीट है, ये स्पर्म्स आएंगे, इसके साथ जाके अटैच होंगे, जाइगोस्पोर बनेगा, मियोसिस होगी और फिर एक नई कॉलोनी जनरेट हो जाएगी। इस तरह करके पूरा इनका साइकिल चलता है।